कैन यू इमेजिन, अ डजन फिल्म्स डिडंट वर्क आउट फॉर मी. अब जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि you know, I was really, I don't know how I got through that period. I watched माधुरी दीक्षित in 1, 2, 3 और मुझे प्यार हो गया. प्यार तो हमको भी होता है पर हमने एक्टर बनने का नहीं, पर तब ये जो भूत सवार हुआ ना वो कभी उतरा नहीं. I really enjoyed my college years. You know, कॉलेज में बहुत सारे हमारे एक्टिविटीज़ होते थे तो मैं काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थी. Xavier's actually introduced me to cinema of all kinds. I used to be very angry. और सारा गुस्सा मैं अपनी मम्मी पे निकालती थी. I think उन्होंने भुगता है मेरा वो rejection का phase. Actually, she bore the brunt of it. So talking about the film which changed your life, परिणीता, but वो भी आपको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मिली या आपको पता चला? आप किसी कॉन्सर्ट में थी? एनरिके के कॉन्सर्ट में थी मैं. उस जमाने में एनरिके was huge and I loved him. And दादा के साथ एक एक लड़का काम करता था. हम लोग सब बहुत दोस्त हो गए थे, दादा की पूरी टीम. पर हम दोनों एनरिके के बहुत ज़बरदस्त फ़ैन थे तो हम दोनों चले गए कॉन्सर्ट में. और मैं चली गई. आई टोल्ड हिम, पवित्र मुझे उठाना, एक बार एनरिके का हाथ लग गया तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी. परिणीता छोड़ो. He actually was about to lift me up. We were right next to the stage when Vinod Chopra called. Actually, Pradeep Sarkar, Dada called. And मेरा तो फ़ोन बंद था, so he called on Pavitra's phone, and Pavitra picked up and he said, "Vidya कहाँ है? दे उसको फ़ोन." So Pavitra gave it to me, and luckily this was in between 2 songs, so सुनाई दे रहा था. मैंने कहा हाँ दादा. He said, रुक, Vinod Chopra wants to talk to you. And I said, अब 6 महीने से तो टेस्ट चल रहा है, अब क्या बोलने वाले. 6 महीने नहीं, that's an exaggeration, but लगा जैसे 6 महीने लग गए हो. मैंने कहा, yes Mr. Chopra. He said, I want to talk to you. I said, can I call you? I'm at a concert. Because मैंने कहा ऑलरेडी अब क्या मेरी उंगली टेस्ट हो रही है या क्या हो रहा है नहीं पता, टेस्ट पे टेस्ट करे जा रहे थे. तो he said, no, I want you to step out. I said, there are 20,000 people. I'm right next to the stage. He said, you will walk out of that place and I will hold the line. He is like that. तो मैंने कहा, कोसते हुए उनको मैं बाहर निकली धीरे धीरे हाथ पकड़ने वाला मोमेंट चला. या धक्का मुक्की देके मैं बाहर निकली. and I said yes Mr. Chopra. He said yes my Parinita. And he said that and tap. So my friend thought कि he said nahi. So he was like, no, calm down. And Vinod Chopra said a whole lot of things. I don't think I even registered any of it. I hung up and my friend looked at me and he said, I'm so sorry. And I said, no, I got it. I can actually feel it right now. Yeah, it was crazy. और हीरो शुरू हो गया था. Enrique was singing Hero inside on stage. It was a beautiful moment. फिर तो मैं कॉन्सर्ट छोड़ के आ गई थी. I came back home to tell my parents, and Dada and his wife Bodhi and a couple of their assistants, they all came over to my house in Chembur. It was क्योंकि सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, because Dada had wanted me for the role. पर at a certain point लगा कि शायद होगा नहीं. तो here also he was slowly coming to accept कि शायद किसी और को कास्ट करेंगे, बड़े स्टार को कास्ट करेंगे. क्यों ऐसा लगा? तो इतने ऑडिशंस हो रहे थे इसलिए? हाँ, इतने ऑडिशंस हो रहे थे. एंड बेसिकली विनोद चोपड़ा का कहना था कि मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, फिल्म का नाम परिणीता है, इट्स अ टाइटल रोल, तो मैं आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, एंड व्हिच आई अंडरस्टैंड. तब शायद समझ में नहीं आया, आई हैव टू से, बट today I understand that. I'm also married to a producer. Yeah. So I understand those things. पर तब लग रहा था कि यार क्या है, but all said and done, hats off to him. उन्होंने एक नई लड़की पे पैसे लगाए और पूरी कन्विक्शन के साथ पैसे लगाए, और ना सिर्फ परिणीता बल्कि मुझे मेरी अगली 2 फिल्में भी दी. So for my first 3 films were with Vinod Chopra films. लगे रहो was उसके बाद? लगे रहो and एकलव्य, एकलव्य, which he directed himself.
So then Vidya Balan had arrived by then. But अब मैं अगर पूछूं इतने सालों के बाद, you've given hits, you've given flops, but normally आपकी performances लोगों ने आपको प्यार ही किया as an actress. अब जब आपको एक फिल्म चूज करनी होती है कि करना है या नहीं करना है, तो आप कैसे, how do you choose your films? अब actually I think it's an instinctive decision. जब मैं कोई कहानी सुन रही होती हूँ या फिर जब कोई कहानी पढ़ रही होती हूँ, अगर मैं अपने आप को उस किरदार में देख पाती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ शायद मुझे ये करनी चाहिए. और ये भी है कि आई आस्क माई सेल्फ एज एन ऑडियंस, डू यू वॉन्ट टू सी दिस? देन एज एन एक्टर, डू यू वॉन्ट टू डू दिस फिल्म? और फिर इस किरदार को क्या तुम ये किरदार निभाना पसंद करोगी? क्योंकि कभी कभी होता है कि मुझे कुछ ऑफर हुआ है और मुझे कोई और किरदार पसंद आ गया है. तो ऐसा भी होता है. सो दीज फ्यू कंसिडरेशंस, फिर कौन है प्रोड्यूसर, कौन है डायरेक्टर. सो टुडे इट्स नॉट इट टेक्स अ लिटिल टाइम. आई लाइक टू स्लीप ओवर इट, बिकॉज कभी कभी आप you have to know whether it's really an instinctive decision or whether, because hit या flop वो आपके हाथ में नहीं है. पर I just want to make sure I enjoy the experience of doing the film. तो जिनके साथ मुझे काम करना है, अगर मैं उनको ना पसंद करूं तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा. और कभी कभी वो बात बनती नहीं है, केमिस्ट्री नहीं आती. नहीं, इट्स ऑल्सो अबाउट ट्रस्ट ना, और डायरेक्टर के साथ वो होना बहुत ज़रूरी है. तो कभी इंस्टेंटली वो नहीं होता, पर लगता है कि नहीं इनके साथ इफ आई स्पेंड सम टाइम शायद कुछ हो सकता है. अब परिणीता जब आपको मिली, आपने कहा ट्रेन्ड एक्टर आप नहीं थी, मतलब जो भी है वो थोड़ा जो भी सेट्स पर सीख रही थी या जो भी आप काम कर रही थी. परिणीता के लिए सबसे स्पेशल प्रिपरेशन क्या करनी पड़ी आपको? मैं बिल्कुल तैयार थी. जब परिणीता मुझे मिली तब तक तो आई न्यू परिणीता, आई न्यू ललिता, क्योंकि दादा के साथ मैं काफ़ी वक्त बिता चुकी थी. उनके साथ बहुत एड फिल्म्स किए थे. ही बिगन टू मोल्ड मी. वो मुझे होमवर्क देते थे, कहते थे ये फिल्म देख कर आना कल और फिर हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस में क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, ये सब. तो आई न्यू ललिता के बारे में इतना कुछ मुझे बता चुके थे. दैट काइंड ऑफ प्रेपरेशन आई डोंट थिंक आई एवर हैव फॉर अनदर फिल्म, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ और था भी नहीं तब. This was the only thing, focus exactly. For months, actually more than a year. और यही एक उत्साह, एक जोश, एक आग, पागलपन कह सकते हैं. हाँ, पागलपन, जुनून. और मुझे लगता है और आपकी आगे की पूरी जिंदगी, पूरा करियर उस एक फिल्म पर डिपेंड करता है. प्रॉब्ली अगर उसमें आप नहीं चलती हैं, आपका काम पसंद नहीं किया जाता, पता नहीं उसके बाद दूसरी चांस मिलती है. बिल्कुल नहीं, पर मैं दूसरे चांस के बारे में सोच भी नहीं रही थी. सच बताऊं, मेरा ये था कि इसमें मैं अपनी पूरी कसर पूरी कर लूँ ना, तो इसके बाद जो हो सो हो. क्या बात है. बिकॉज उसके आगे का किसी को पता नहीं था कि फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, मुझे पसंद किया जाएगा ना पसंद किया जाएगा, नहीं पता था. पर आई गॉट दिस बिग अपॉर्चुनिटी ना, एंड इतने जद्दोजहद के बाद तो मैंने जूस निकाल लिया था उस मौके का. अब डर लगता है कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी, लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, क्या वो डर अब आ गया है? नहीं, अभी भी मैं डर तो नहीं है, पर हाँ हर फिल्म के रिलीज़ के पहले वो तो होता है ना कि मुझे तो फिल्म, क्योंकि जब आप सब एक साथ काम कर रहे होते हैं ना, समटाइम्स यू ऑल बिकम ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स इन इट. दैट्स अबाउट कलेक्टिव एनर्जी. ये जिसे हम हर्ड मेंटालिटी कहते हैं ना, कि आप भूल जाते हैं सब कुछ. You're not objective anymore. The same thing on a film. You're not objective anymore. You're all breathing, eating, sleeping the same thing. So you're wondering, क्या हमने अच्छी फिल्म बनाई है? I'm not objective. क्या मेरा काम सही है? वो जब तक फिल्म रिलीज ना हो, वो एक अंदर तो एक मैं कांपती हूँ, वो तो है. फिल्म रिलीज के दिन मैं लेट उठती हूँ, प्रमोशंस में अपने आप को इतनी थका देती हूँ कि उसके बाद कुछ दिनों तक मुझे होश नहीं रहता कि
अच्छा क्या है, आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट ओवर द टायर्डनेस. अब मुझे समझ आ गया वाई आई डू इट, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू डील विद द स्ट्रेस ऑफ दैट रिलीज वीकेंड. क्योंकि बीच में एक फेज आया था जब आपने काफी फ्लॉप्स हाँ, लगातार 6-7 फिल्में फ्लॉप हुई थी मेरी. दैट वाज अ वेरी टफ टाइम. अगेन अ रिटर्न ऑफ द टफ टाइम. Yeah, because you know, first they're saying, "अरे, the fourth Khan," हाँ, और I didn't believe it, but कहीं ना कहीं you buy into it ना, because it sounds so good. And then they're saying Shiro and all that, और उसके बाद टक 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 टक, you're just, it's a downward slope, and you're wondering कि अच्छा ये क्या fluke था, ये क्या जो मेरा high था वो खत्म है. You know, is this the end? Am I not? So what am I doing differently? फिर आप हर डिसीजन के पहले इतना सोचते हो, इतना एनालाइज करते हो, बहुत गुस्सा. Also you feel ना कि at some point we as human beings, I think we want to believe कि अच्छा इसके बाद तो कुछ, जैसे कोरोना के बाद दुनिया में कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, बिकॉज कोरोना ने पूरा बदला ले लिया है ना. पर डज इट मीन दैट इसके बाद कुछ होगा नहीं? पर हम सब बिलीव करना चाहते हैं ना. आफ्टर व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दैट हाई, आई थॉट कि इसके बाद आई एम अनटचेबल. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. यू नो, आई मे नॉट हैव फेल्ट इट एक्टिवली, बट कहीं ना कहीं पीपल वर सेइंग, ओ द गर्ल विद द गोल्डन टच, ये जो स्क्रिप्ट छूती हैं वही स्क्रिप्ट्स में छू रही, उसी है, उन्हीं हाथों से मैं छू रही थी और कुछ हो नहीं रहा था. एंड देन यू वंडरिंग, तब शादी भी हो चुकी थी मेरी. यू नो, डर्टी पिक्चर और कहानी के बाद मैंने शादी कर ली, और लोग मुझसे कहने लगे थे कि नहीं, यू नो, बट एक बार एक्ट्रेस शादी कर लेना तो वो बात नहीं बनती. एंड आई यूज्ड टू से व्हाट रबिश. पर फिर ना, व्हेन द फिल्म्स वर नॉट वर्किंग, आई वाज लाइक, इज इट ट्रू? मे बी इट इज़ ट्रू. मे बी दे नो बेटर. आई वाज अ फूल to have gotten married, but then I wanted to be married to Siddharth. So it was, you deal with that. These conflicts that one goes through, you know, and then to realize that no, it's not about being married or unmarried, or it really doesn't matter as long as the film is good. कभी कभी फिल्में ऑडियंस के साथ क्लिक नहीं होती. कभी ऐसा भी होता है कि लोग थिएटर में देखने नहीं जाते, जैसे हमारी अधूरी कहानी के साथ हुआ. People didn't like the film at all. They didn't go to the theater. Right? But today most people I meet mention हमारी अधूरी कहानी to me, and I'm like, तब आप कहाँ थे? Please बताइए मुझे. But they waited to see it on their TV screens. ये बहुत होता है. Yeah, and you know, various other reasons. कभी कभी फिल्म में, I guess, so many energies coming together ना, कभी कभी वो it just doesn't work. इसका कोई फॉर्मूला नहीं है. अब एक सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी, वो शायद 1000 बार आप उसका जवाब दे चुकी होंगी. जैसे आपने कहा कि यू नो, मैं उस विजुलाइज करती हूँ, शुड आई बी डूइंग दिस फिल्म एज एन एक्टर एंड ऑल ऑफ दैट, डू पीपल वांट टू वॉच इट. सो डर्टी पिक्चर करने का डिसीजन क्या ज़िंदगी का अभी तक का सबसे मुश्किल फैसला था? क्योंकि कहीं ना कहीं लगा होगा मेरे बहुत सारे चाहने वाले मुझे ना पसंद करें जो मैं कर रही हूँ. नहीं, you know, when I was going through the dirty picture and कहानी and that entire phase, actually I think I went through that phase because I was absolutely fearless. ये मैंने कभी सोचा नहीं कि लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे. मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, मैंने कहा कि इस फिल्म में मैं बहुत स्किन शो है मेरा. And my parents just told me, they said, do you trust the people you work with, you're going to be working with? I said, yeah, Ekta. And they knew Ekta because of Hum Panch. And they have a very good impression of Ekta. You know, they met her very briefly, but they said, and to have a woman producer was very comforting. Safer. Then I said, I trust Milan Luthria. He's always inspired that trust. So they said, then go ahead and do whatever. If you believe in it, do it. There were other people who told me, no, you shouldn't be doing this. नहीं, ये सही नहीं होगा तुम्हारे करियर के लिए. पर वो एक ऐसा दौर था जब डर नाम की चीज़ मुझ में नहीं थी. I didn't think. I wasn't calculating. उसके बाद जब कैलकुलेशन शुरू हुआ ना कि अच्छा, और अलग टाइप का कैलकुलेशन था कि अच्छा ओपनिंग डे क्या होगी, नंबर्स क्या होंगे, फिल्म मुझे कितना पसंद किया जाएगा, क्या मुझे कुछ अलग करना चाहिए क्योंकि लोग मुझसे अलग एक्सपेक्ट करते हैं. जब ये सब आप सोचने लगते हो ना, तब आप अपनी
अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुनते, दुनिया की आवाज़ सुन। या देन दैट्स अ प्रॉब्लम. सो आई थिंक एवरी फेज हैज टॉट मी समथिंग. पर जब आप उससे गुजरते हो तो लगता है कि तब भी लगता है कि शायद फिर सूरज कब उगेगा. You know, you wonder whether there will be a sunrise at all, but life is cyclical. एक सवाल हमेशा मन में आता है, क्योंकि इतने अलग अलग तरह के रोल्स, तुम्हारी सुलू और मतलब मिशन मंगल, एक नॉर्मल साइंटिस्ट, आप उस रोल में घुसती कैसे हैं कि ऐसा लगे कि मतलब लोग विद्या बालन को भूल जाते हैं, उस कैरेक्टर को याद रखते हैं? व्हाट डू यू डू फॉर दैट? आई थिंक मैं शायद अपने आप से जब बहुत ऊब जाती हूँ तब मैं फिल्म करती हूँ. तो मैं अपने आप को उस किरदार में खो देती हूँ. नहीं, आई थिंक आई वर्कड ऑन वेरी वेल रिटन रोल्स विद वेरी वेरी गुड डायरेक्टर्स. तो उस वजह से दे हैव बीन एबल टू यूज माई स्ट्रेंथ्स ब्यूटिफुली. तो इसका श्रेय उनको जाता है. आपने शादी का जिक्र किया, सही बात है, ये एक माना जाता है कि अगर टॉप एक्ट्रेस है, अब शादी कर ली, अब करियर खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा. बट मैं उसके अलावा एक बात पूछना चाहती हूँ कि हर लड़की के मन में एक सपना होता है कि हस्बैंड हो तो ऐसा हो, पति हो तो ये, यू नो, सम डेफिनेशंस वी ऑलवेज हैव इन आवर माइंड. आपके मन में क्या थी, एंड हाउ डिड सिद्धार्थ फिट इनटू दैट? यू नो, लकीली सिद्धार्थ डिडंट हैव टू फिट इनटू इट, बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी करूँगी. ओह, आई एम टेलिंग यू, मेरी लाइफ में एक ही एक्टर सपना था, एक्टर बनूं. उसके अलावा मैंने कभी बॉयफ्रेंड का नहीं सोचा था, हस्बैंड का नहीं सोचा था. मुझे मेरी फ्रेंड्स डिस्कस करती थी, पता है जब मैं शादी करूंगी तब मेरी शादी ऐसी होगी, मेरी मेहंदी पर मैं इस तरह के कपड़े पहनूंगी, ये ऐसी पार्टी होगी. मैंने कभी सोचा नहीं था. या लड़का लंबा होना चाहिए, ऐसा नहीं. होना चाहिए, प्रोफेशन में ऐसा होना चाहिए. बिल्कुल नहीं. सो व्हेन आई मेट सिद्धार्थ, whatever happened happened, and it was, marriage was a natural progression for us. कि अच्छा अब 2.5 साल हो गए हैं, what we wanted to be with each other, so we got married. Actually more for our parents also. शायद अगर पेरेंट्स से वो, my parents had that expectation कि एक बार शादी हो जाए तो, you know, तो शायद उसलिए, otherwise I would have been happy just living with Siddharth. I didn't need the, बट लोग पूछते हैं. हाँ, पर मुझे इस मामले में ना, नहीं, बट पेरेंट्स से पूछते हैं. या पेरेंट्स से शादी पूछते कब हैं. कर रहे हो? एंड आई मीन माय पेरेंट्स वर, आई थिंक दे फील कि शादी एक तरह की सिक्योरिटी है, कि यू नो देयर इज लेसर चांस ऑफ यू जस्ट not being lonely if you're married or something like that. I don't know what it is. वो सिक्योरिटी वाला Yeah. ये एक थॉट Yeah, हमारे yeah. पेरेंट्स सोसाइटी में. सो इट वाजंट लव एट फर्स्ट साइट, पहले एक दोस्ती हुई. नहीं, it was attraction at first sight. कहीं बैकस्टेज मिले थे कहीं आप? हाँ, मुझे पा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस मिला एट फिल्म फेयर, एंड आई केम ऑफ स्टेज एंड आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू सिद्धार्थ. और मैं दिल्ली जा रही थी नो वन किल जेसिका के शूट के लिए, विच दे वर प्रोड्यूसिंग यूटीवी, पर मैं उनसे मिली नहीं थी. ओके. So I got introduced to him and I just 2-minute conversation and then I left for Delhi. And then उस दौरान, you know, they were considering some films that I was supposed to have done. मैंने भी नहीं की, पर वो we just, I think life is just bringing us together. डेस्टिनी. Yeah, absolutely. शादी ने विद्या बालन को बदला क्या एज अ पर्सन? Oh, most definitely. कैसे? पहले मैं एक्सेप्ट नहीं करती थी. मेरी यही कोशिश थी कि मैं शादी के बाद ना बदलूं, पर ये इम्पॉसिबल है. दिन ब दिन हम सब बदलते हैं, यू नो, वी लर्न, वी ग्रो, वी इवॉल्व, एंड शादी इज शेयरिंग योर लाइफ विद अनदर पर्सन. एंड आई थिंक शादी में रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग सबका होना इतना ज़रूरी है, along with love. Just they say ना, you can't just live on love and fresh air. तो शादी, when people would say कि शादी requires work, I would be like, what rubbish, then I don't want that type of शादी. पर हर शादी में काम होता ज़रूर है, you know, because it's a adjustment. Two completely different people are sharing space, even mind space. So, you know, शादी में आप सब कुछ शेयर कर रहे हो. You're sharing a physical space also. एक हैबिट भी हो जाती है एक दूसरे की. बट द चैलेंज इज नॉट टू टेक द अदर पर्सन फॉर ग्रांटेड. ट्रू. सो यू नो, आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल
I think it's definitely changed me. It's changed me. जैसे मैंने कहा कि जैसे शादी के बाद मेरी उम्र घट गई हो, I feel that. और मैं और बेबाक हो गई हूँ, बिंदास हो गई हूँ. जैसे मैंने कहा मुझे I feel now I don't feel the need to say or do anything that I don't mean. I think इसमें सिद्धार्थ का रोल है. I think it definitely has to do with marriage and सिद्धार्थ. जब आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं as you are, you know, that gives you feel कि सही है. सिद्धार्थ does not ever tell me behave like this or you know talk like this, don't laugh like this, or I'm just saying I also don't. मैं रोक टोक नहीं करती. It's very tough because you want to sometimes, you know. But I think we respect each other enough not to do that. But that requires work. But don't you agree? Lucky also कि ऐसा पार्टनर अगर मिल जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा होता है दोनों तरफ से एक दूसरे को बदलने की कोशिश होती है. वो एक गाना भी है ना कि प्यार तो पहले ऐसे किया था लेकिन उसके बाद आप बदलने की कोशिश करते हो. Correct. तो वो do you feel blessed? Yeah, I feel absolutely. And are you also the same, that you don't try to change? No, not at all. I don't. I'm saying there is a temptation always, na? When you're so close to the other person, I think you sometimes out of protectiveness, sometimes out of possessiveness, love. आप एक दूसरे को change करने की कोशिश करते हो. But I think we both respect each other enough to hold back. But that requires constant reminding, which is why I said कि हम एक दूसरे को taken for granted लेते हैं. Normally, that's even with friends it happens. You spend so much time together, that happens. Then as a couple, it's that much more. But I think that's why I think I feel marriage has just made me more honest. Wow. Honest with myself, which is why I'm saying मुझे I don't feel the need to couch anything. I say things as it is. So I won't say anything to just hurt you. That I'm conscious of. But I'm generally saying कि I don't feel the need to please the other. To please another. अच्छा, अब तो ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन 2012 में जब आपकी शादी, उसके तुरंत बाद वो रूमर्स वो होते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं. पहले कि टेंशन चल रहा है दोनों के बीच में, देन रूमर्स अराउंड बेबीज, रूमर्स अराउंड फाइट्स. हाउ डिड यू डील विद दैट? You know, I was a bit shocked. I don't read anything. I think I stopped reading in 2008. जब मेरे बारे में बहुत ख़राब लिखते थे ना, या तो वज़न के बारे में या कपड़ों के बारे में, मैंने पढ़ना बंद कर दिया. तो I was sorted. But obviously the people in my life were getting affected. My parents particularly. उनको बहुत गुस्सा आता था कि टचवुड सब कुछ सही चल रहा है. Why do people have to? Because I guess I was. See, you know, we judge very easily, na. I may have been looking unhappy because my films were not doing well. Yeah. But people thought कि अच्छा there is something more to it. I was also going through very bad health. बहुत severe hormonal problems हो रहे थे मुझे. That's not something you want to discuss with anyone. हालांकि I've been quite open, but having said that, you know, there are some things that, and then of course also the adjustment of, for 33 years I was on my own. Now I was sharing space with someone, that brings with it a lot of adjustments and compromises. किस शादी में नहीं होते? हाँ बिल्कुल. आपके रूममेट के साथ शिफ्ट हो जाओ फिर भी आपको you know, you have to adjust and compromise. This is, you know, there is an emotional involvement here. So obviously I think it was I didn't understand it and I didn't care, honestly. I used to get angry sometimes, but I used to get angry because my parents would say ये क्या अनाप शनाप लिख रहे हैं. Would hurt them. You know. And Siddharth also thankfully doesn't care. Even if he did, he didn't show me. Because I think it was a change for him also. वो बहुत ही ज़्यादा private हैं. You know, उनके दोस्त भी उनके स्कूल और कॉलेज टाइम से हैं. कोई इंडस्ट्री से उनके कोई दोस्त नहीं है. मतलब बहुत सारे ऐसे तो दोस्त हैं पर करीबी दोस्त कोई इंडस्ट्री का नहीं है. तो आई थिंक he's a very private person. So suddenly, firstly, he was in the limelight.
And what was angering me was people were saying things, you know, about us because of me. But that us involved him in me, which is so unfair. True. But I guess we've accepted that this is how it's going to be. तो ठीक है. And those rumors about the child, oh God, it was, you know. I was reading अभी recently, सारा पढ़ रही थी मैं. My God, that you've been visiting a hospital very frequently. Yeah, you know, one of my who is it? One of my neighbors was unwell. I visited the hospital. They said, "Oh, we think that she's having a baby." And then my kurta must have been sticking to my body. And they said, "Oh, look at her stomach." And I finally turned around and said, "Listen, I've never had a flat stomach. That's my stomach regularly." What are you talking about? तो ये, पर thankfully अब, you know, हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं, so they've lost interest in. हाँ, अब बंद हो गया है. Yeah. तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रोवर्सीज जो आपसे जुड़ी रही, और मैं इसलिए भी समझना चाह रही हूँ कि बहुत ज़रूरी है आप जैसे लोगों से समझना कि कैसे उस किसी भी मुश्किल परिस्थिति को हैंडल करना चाहिए. सो आप लगातार बचपन से लेकर अभी तक वेट की बात कर रही हैं. बॉडी शेमिंग बहुत हुई है आपकी, और एक्ट्रेस बनने के बाद और ज़्यादा. हम लोग के साथ सबके साथ होता है. अगर टीवी पे आ रहे हैं, कोई किसी भी ऐसी उसमें है, मोटी हो गई, एंड एवरीबडी थिंक्स दे हैव अ राइट टू कमेंट ऑन योर लुक्स. क्या कभी आपको इस बात ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, या आपने लोगों को पलटकर जवाब दिया? हाउ डिड यू डील विद इट? बिकॉज नाउ यू आर कॉन्फिडेंट. Yeah, now I'm confident, but it's taken me a lot to get here, Richa. You know, it's not like I was always like this. I think I went through all that public body shaming so that I could come to terms with my body. I could make peace with my body. I could start loving my body just the way it is. क्या किया आपने? बहुत रोई, बहुत गुस्सा हुई, कभी कभी बहुत खाया, कभी कभी कुछ भी नहीं खाया, कभी कभी जिम में अपने आप को मार दिया, कभी कभी महीनों तक एक्सरसाइज नहीं किया, कभी दिमाग में कॉन्वर्सेशंस चलते रहते थे कि अच्छा इन्होंने मेरे बारे में ऐसा कहा, मैं इनको पलट के ऐसा जवाब दूंगी, वजन कम करके दिखाऊंगी. हाँ, वो जवाब मैं दे ही नहीं पाती थी, क्योंकि आज भी अगर कोई मुझसे कोई किसी भी चीज़ के बारे में ऐसे ही कह दे रूडली, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी. आई एम नॉट मेड लाइक दैट, you know, because some people, especially in India, I think people think it's okay to talk about the body. So a lot of girls ask me, how do you deal with it? Because now they feel that, you know, I've overcome it. So I keep saying that if, हाँ, अगर किसी ने मुझसे कहा कि अच्छा आप कैसे झेलते हो जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, मैं यही कहती हूँ, अगर उन्होंने आपसे कहा कि आप वज़न कम कर लो, तो आप पहले कहो कि आप अपना दिमाग बढ़ा लो. जब आप वो कर लोगे तब मैं ये कर लूँगी. बट क्या आप ये कह पाई किसी से? नहीं, कह नहीं पाई हूँ, बिकॉज आई जस्ट टुडे आई रीच्ड अ स्टेज जब मैं मैं इग्नोर, अभी आजकल कोई एक्चुअली मुझसे बोलता नहीं है, डरता है. हर कोई डरता है, क्योंकि उनको पता है थ्रू इंटरव्यूज एंड ऑल दैट कि मैं इस बारे में बहुत वोसिफरसली बोलती हूँ. पर तो मैसेज लोगों तक पहुँच गया है. हाँ, तो आई थिंक कोई पंगा नहीं लेता अब. पर एक वक्त था जब लोग बहुत बोलते थे और मैं बहुत चिढ़ती थी और बहुत गुस्सा आता था. अंदर ही अंदर आप जल रहे होते हो, जो आपको कहना है वो आप कह नहीं पा रहे हो, क्योंकि एक्ट्रेस का जो हमने एक सेट वो बनाया हुआ है उसमें आप फिट नहीं हो रही हैं. हाँ बिल्कुल. तो आपकी कला, आपकी एक्टिंग, वो सब भूल के. पर आई थिंक इंडिया में ये है ना कि आप किसी से मिलोगे, ये नहीं पूछोगे आप कैसे हो, अरे कितनी पतली हो गई, कितनी मोटी हो गई, इसके अलावा आपको कुछ दिखता नहीं है. विच मीन्स कितना सुपरफिशियली आप किसी को देख रहे हो. आप इंटरेस्टेड नहीं हो देखने में कि वो इंसान खुश लग रहा है कि दुखी लग रहा है, कि बस यही. एंड देयर इज नो वन डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी ना. सही बात है. मुझे आई थिंक हेमा मालिनी को एक ज़माने में मिस इडली बुलाया जाता था, पर आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन मोर ब्यूटीफुल देन हर. अगर उनको नहीं छोड़ा तो फिर मैं कौन हूँ. चलिए, और दूसरा आपके साथ आपकी ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर बहुत आर्टिकल्स लिखे गए कि वो अच्छा नहीं है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है. अब वो भी सबका अपना अपना होता है. हाँ, उसके साथ आपने कहीं ना कहीं उससे लड़ने की कोशिश तो की, आपने वो बनने की कोशिश की जो आप नहीं थी. हाँ बिल्कुल, पर आई थिंक मैं वही कर रही थी जो लोग मुझे कह रहे थे. क्योंकि मुझे
लगा कि अरे मैं फ़ैशन के बारे में कुछ जानती नहीं हूँ। तो अगर आपने कहा कि आपको ये कॉम्बिनेशन पहन लेना चाहिए, मैं वो पहन लेती। किसी और ने कहा कि ये स्टाइल पहनना चाहिए तो मैं पहन लेती। मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। तो ऑब्वियसली पीपल वर क्रिटिसाइजिंग मी, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इतना उस बारे में बात करने की ज़रूरत थी, पर लोगों के पास वक्त बहुत था, मैं काम कर रही थी। बट एनीवे, वो मुझे बहुत अफेक्ट करता था एक वक्त तक। फिर 2008 में मैं सब्यसाची मुखर्जी से मिली और उन्होंने मुझसे कहा, पर तुम साड़ी में कितनी अच्छी लगती हो। आई सेड बिकॉज मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो ही सेड तो फिर साड़ी पहनो। आई सेड मैंने कहा कि सब कहते हैं कि साड़ी पहनने से आप यू लुक ओल्डर, कि आप बहुत ट्रेडिशनल लगोगे, सेक्सी नहीं लगोगे। ही सेड जो तुम्हें अच्छा लगता है वो पहनो। और मैंने एक्चुअली वो शुरू किया। मैंने हर जगह साड़ी पहननी शुरू की और धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मैं अपने आप को अच्छी लगने लगी, लोगों को मैं अच्छी लगने लगी। क्या बात है। तो यही है कि अब जो, इसीलिए ये इस सब का यही हशर हुआ है कि आज मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। ये आपने इनडायरेक्टली इतना बड़ा मैसेज हम सबको दिया है कि जिस दिन हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम हैं, आई थिंक दैट डे वी आर हैप्पी एंड वी आर एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और सारी जिंदगी दुखी इसलिए रहते हैं कि हम दूसरों को प्लीज करने में लगे रहते हैं। हाँ, एंड वी थिंक कि जब कोई दूसरा हमें एक्सेप्ट करता है तब हम अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे। पर कोई और आपको, आप जिस तरह हैं, कोई भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट ना करो। विद्या, मुझे लगता है अगर आप और मैं बातें करते रहे तो पूरा दिन भी कम पड़ सकता है। बिल्कुल। और मैं आपको बात करने का मौका भी नहीं दे रही। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना, लेकिन वक्त की मजबूरी हर जगह होती है। तो हमारे पास बहुत बड़ा गिफ्ट हैम्पर आपके लिए नहीं है, लेकिन कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। अरे वाह, ग्रेट। विद्या बालन को लेकर दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? कि वो आई डोंट नो, आप बताइए। हम तो गलतफहमी पाल सकते हैं ना, मतलब हम तो सोच सकते हैं, आप बताएंगे कि वो गलतफहमी है। आप कुछ बोले तो मैं बता दूं आपको कि वो गलतफहमी है। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आपको सब, जैसा आप अपने आप को कैरी करती हैं, सब आपको बहुत एक्सट्रोवर्ट समझते हैं, लेकिन आज आपकी बातों से लग रहा है बहुत प्राइवेट और इंट्रोवर्ट है। You've told me something about myself, so thank you. शायद मैं I think I'm equally social, but मुझे अपने आप के साथ वक्त स्पेंड करना भी बहुत अच्छा लगता है। I'm social when I'm being the actor. But Vidya Balan, the person, is yes, you're very right. private. Yeah. एक बुरी आदत आपकी जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मुझे अपने बाल कंघी करना अच्छा नहीं लगता। नहीं। मेरे ना बहुत नॉट्स हो जाते हैं तो बहुत दर्द होता है। कौन करता है कि आप दूसरे से कराना पसंद? नहीं, मैं कर लेती हूँ पर बड़ी मुश्किल से करती हूँ। आई टाई इट अप इनटू एन अंबोड़ा ऑल द टाइम, टॉप नॉट कर लेती हूँ, फिर दिन में एक बार तो मैं सवारी लेती हूँ। किसी चीज़ का OCD है आपको? हाँ, क्लेanलीनेस का बहुत OCD है। तो कभी कभी होता ही है कि सिर्फ क्लेanलीनेस का नहीं, कुछ कुछ अजीब चीज़ों का भी। जैसे मेरे यहाँ मीटिंग हो रही थी और मैंने देखा कि मैट थोड़ा सा टेढ़ा है और मैं देख रही थी यहाँ वहाँ की, कब मैं बोलूँ, वो नरेट कर रहे थे सामने बैठ के एक राइटर। मैं रुकी रही, मेरा ध्यान भटक रहा था। फाइनली आई सेड 1 मिनट, आई वेंट स्ट्रेट इन द मैट एंड देन आई वाज ओके। तो कुछ पागलपन है। OCD है। क्या खाना सबसे ज़्यादा पसंद है? घर का खाना, मम्मी के हाथ का बनाया हुआ साउथ इंडियन फूड, चाहे वो इडली डोसा हो या कोई, मतलब जिस तरह से ट्रेडिशनल पालका राइयर घरों में खाना बनता है, वो अवियल हो, सांबार हो, वो सब बहुत अच्छा लगता है। आपने कहा आप अकेले वक्त बिताना अच्छा लगता है आपको, यू नो लाइक टू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, बट उस समय क्या करना पसंद करती हैं? फेवरेट टाइम पास? आई लाइक टू वॉच समथिंग। आजकल तो बहुत शोज़ हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। पढ़ना अच्छा लगता है। कभी कभी समंदर को देख के बैठी रहती हूँ, क्योंकि हम वी लिव ऑन द बीच। हाँ, या दैट्स इट। अगर आप कभी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगी तो उसका नाम क्या होगा? ओह माय गॉड।
सेकेंड विंड। सेकेंड विंड का मतलब आप जानती है ना, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और एकदम थक जाते हैं, सडनली फिर से आपको वो एनर्जी आती है। आप में वो एनर्जी आ जाती है। आई थिंक इट्स सो ट्रू ऑफ माई लाइफ कि कभी देर बीन मेनी सेकेंड विंड्स इन माई लाइफ। मैं यही बोलने वाली थी, फोर्थ फिफ्थ हो जाएगी आपकी तो। ओके, सो आई वेट फॉर दैट ऑटोबायोग्राफी। आपकी फेवरेट अपने समय की अभी एक्ट्रेसेस में से, योर फेवरेट? There are many actually. There's not one. But I think different. I've liked performances of various actors. There's Kangana, Alia, Priyanka, Bhumi. तो सभी हो जाएंगे। हाँ, सभी हैं। एक ऐसा रोल जो आपको दुख होता है कि आपने नहीं किया, रिग्रेट गिविंग अप, कोई फिल्म No. आपने छोड़ी हो? No such rule, not yet. योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? My faith in myself, in that superpower, और ये विश्वास कि the universe has my back, कि कायनात कभी साथ नहीं छोड़ती। किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो। हाँ, बिल्कुल। और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ईरा और रूहान, मेरी बहन के जुड़वे बच्चे, वो मुझसे कुछ भी करा सकते हैं। आपका अपना सबसे पसंदीदा रोल? काफ़ी सारे हैं। आई थिंक नो वन किल जेसिका, इश्किया, पा, ओ गॉड, मिशन मंगल, कहानी, शकुंतला, काफ़ी सारे हैं। तुम्हारी सुलू। तुम्हारी सुलू। अवार्ड्स या बॉक्स ऑफिस सक्सेस? बॉक्स ऑफिस सक्सेस। आई थिंक बिकॉज बॉक्स ऑफिस सक्सेस मतलब बहुत लोगों को आपका काम अच्छा लगा है, तो फिर दैट्स द बिगेस्ट अवार्ड। क्या बात है। तो रैपिड फायर के आंसर्स तो आपने वैसे ही दिए जैसे आपने कहा था, यू लाइक टू बी ऑनेस्ट। या हाउ डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड फॉर एवर विद्या? कैसे लोग आपको याद रखें? नहीं, जब मैं यहाँ हूँ तब याद रखे बस। इसके बाद किसने देखा है मुझे तो पता भी नहीं चलेगा अगर कोई याद कर रहा है कि नहीं। बट फिर हम सब अपनी जिंदगी इस तरह से जीते हैं ना कि लोग कहें हाँ ऐसी थी, ऐसा था। नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी व्हेन आई एम हियर, दैट्स इट। आगे का आई रियली, व्हेन पीपल आस्क मी दिस ना कि हाउ डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड, और आई एम लाइक आई डोंट केयर इफ यू रिमेंबर मी और नॉट when I'm not around, but remember me when I'm here. And remember me with fondness and affection, hopefully. Vidya, it was a pleasure talking to you. अब Same here, finally it happened. finally it happened. Yeah. बस वक्त का ऐसा हुआ है कि ना आपसे हाथ मिला सकते हैं ना गले लग सकते हैं, बट कुछ छोटे छोटे तोहफे हम आपके लिए लेकर आए हैं। So sweet. And I hope you like them. I'm sure I will. ये सब सारी गिफ्ट्स हमारी वोकल फॉर लोकल की हैं। Wow. ये एक छोटा सा प्लांटर है आपके That's लिए। beautiful. I love this. And it's a money plant. Money, money, money. ये पुणे के एक आर्टिस्ट बनाते हैं, गणेश जी। बहुत अलग अलग तरह के wow. बनाते हैं ये। बहुत खूबसूरत है। He has a whole collection, पता है, हारमोनियम बजाते हुए, किताब पढ़ते हुए। और गणेश जी मेरे फेवरेट हैं, तो थैंक यू। थोड़ी रिसर्च कर ली थी मैंने। ये मेरा एक एनजीओ है, आई वर्क विद गर्ल्स। अच्छा। उनसे बनवाती हूँ। ये चंदेरी की साड़ी है। आपको साड़ियों का बहुत शौक है बहुत और आपको हैंडलूम शौक है। साड़ियों का बहुत शौक है, तो मुझे लगा आप पहनेंगी तो चंदेरी के हमारे व्यूअर्स बहुत बेहद खुश होंगे। खूबसूरत है, and I love the color red. आई नो यू लाइक। आपके पास मेरे बारे में हर जानकारी है, अमेजिंग। That's my job.
It's beautiful. ये thank you. मधुबनी का पेंटिंग का मास्क है आपके लिए, बिहार से। Thank you. एंड नाउ पंजाब, ये पंजाब के पट्टी एरिया में फुलकारी करती हैं लड़कियां हाथ से। सो वहाँ से परवीन फुलकारी हाउस वालों ने आपके लिए भेजा है, एंड दे हैंड Thank एम्ब्रॉयडर्ड you. द सूट। वाह, इन सभी आर्टिस्ट को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल अच्छा हो आप Yeah, सबके लिए। I'm sure अच्छा हो। पर मैं तो I'm feeling like you're my Santa Claus today. Thank you. And this is a small note from us for you. Thank you. I've written something. Wow. How sweet. Finally, 2020 is a year.